friends, today I am going to teach you linear equation in two variables part 3. Okay? Linear equation, standard form of linear equation is ax plus by plus c equal to 0. Clear? Here two variables are there, x and y. I am just taking one example, and first I will find out nature of this both equation. First equation is 2x plus y minus 5 equal to 0. Ax plus by plus c equal to 0. Second equation also is in the form of ax plus by plus c equal to 0. Both the equation, here x and y, two variables are there in both the equation. Now comparing ax plus by plus c, what is a1 here? 2. Coefficient of x is 2. Coefficient of y is 1. b1 1. Constant term is negative 5. This is first equation. And this is second equation. Coefficient of x is 3. Coefficient of y is 2. And constant term is negative 8. Just we are watching here a1 by a2, 2 by 3. b1 by b2, 1 by 2. Both are not equal. That's why this equation have unique solution. One condition is there. a1 by a2 is not equal to b1 by b2 means equation has unique solution. Now I will find out x and y with the help of cross multiplication method. First, I have already explained you how to find nature of the equation. Equation has unique solution, or equation has no solution, or equation has many solution. So this equation, both the equation have unique solution. Now I will find out. Okay. Here a1, b1, c1, a2, b2, c2. Now write it in the form of b, c, a, b. इस प्रकार से मैंने एक फार्मूला बना लिया कि बी सी ए बी के फॉर्म में लिखेंगे. ये सी ए और आपका बी जो पार्ट है एक दीवार की तरह. ये प्रकार के चलो याद करने के लिए कि जो सी ए है उसको प्रोटेक्ट कर रहा है बोथ द साइड बी. बी सी ए बी. व्हाट इज बी? 1. व्हाट इज सी? negative 5. What is a? 2. What is b? 1. This is for equation 1. Now for equation 2. What is b? 2. What is c? negative 8. What is a? 3. And what is b? 2. Check. b c a b के फॉर्म में हुआ. Value of b is 1. Value of c is negative 5. Value of a is 2 and b 1. For second equation, b is 2, c is negative 8, a is 3 and 2. ca के दो पार्ट्स कर दिए, दोनों को b को सपोर्ट डाल दिए. याद करने के लिए ca के आसपास ऐसे दो b और b हमने एक खड़ा कर दिया प्रोटेक्टिव. अब क्रॉस मल्टीप्लाई करना है इसे. तो ये आपका क्रॉस मल्टीप्लाई किससे होगा? फिर दोनों का डिफरेंट करेंगे और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे. x निकलेगा. y के लिए फिर ये दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, फिर डिफरेंस करके फिर कांस्टेंट टर्म के लिए ये 3 बार हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई. देखते हैं इसको. आप जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे. ठीक है. ये आपका b वाला कोफिशिएंट पार्ट था, ये आपका c वाला पार्ट था, ये वाला a वाला पार्ट था, ये आपका फिर b पार्ट था. चलो x का निकालेंगे. क्या होता है? क्रॉस मल्टीप्लाई. 1 into negative 8. Yes, negative 8. Difference. Multiply both. 2 into minus 5. Minus 10. Keep in mind children, minus is always written inside the bracket. For constant y.
फॉर y वेरिएबल, नॉट कांस्टेंट, कांस्टेंट इज 1. y -5 into 3 -15, difference of both, -8 into 2 -16. Now constant 1, 2 into 2 4, -3 into 1 3. Clear? Check it. 1 into 8 -8, 2 into -5 -10, difference sign is there. -5 into 3 15, difference sign is there. -16, 2 to the 4, difference is 1. Now solve it. X -8 minus into minus plus. Here minus into minus plus, and constant is 1 by 1. Then -8 plus 2 plus minus become minus 10 minus 8 2 नेगेटिव साइन छोटा है, पार्ट जो साइन बड़ा है, +2 आंसर आएगा. y का वैल्यू यहाँ निकलेगा और ये कांस्टेंट. x इक्वल टू y इक्वल टू 1, ये मीन्स ये मीन्स ये दोनों बराबर है. इसका इसके बराबर, ये इसके बराबर. अब दोनों को आप बराबर कर दीजिए और आपके x और y वेरिएबल्स के आंसर निकल जाएंगे. ये देखिए, नाउ x by 2 is just equal to 1 by 1, and second part y by 1 equal to 1 by 1. ये देखो, इस पार्ट्स को अलग कर दिया, ये पार्ट्स का कंपेयरिंग इससे किए और इस पार्ट्स का कंपेयरिंग इससे किए. ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, इट्स मीन ये इसके बराबर. ठीक. नाउ अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई. 1 into x, 2 into 1 2. Here 1 into y, 1 into 1 1. So x equal to 2 and y equal to 1. This is answer of Q1 equation. यूनिक सॉल्यूशन. सबसे पहले ऑब्जर्व करके देखना है इक्वेशन ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 के फॉर्म में है कि नहीं. यदि नहीं है तो उस फॉर्म में हमें लाना है. ट्रांसफर करके c को लेफ्ट में लाइए. कभी कभी c राइट में रहता है, उसको आप लेफ्ट में ले आइए. फिर a1 b1 c1 लिख लीजिए, a2 b2 c2 लिख लीजिए. फिर ca के दो पार्ट्स कर दीजिए, b का दीवार लगा दीजिए दोनों तरफ और ca को बीच में रख दीजिए. फिर b, c, a और b के वैल्यू को रख दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए. दोनों का डिफरेंस निकालना है. पहले x का निकालेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, फिर डिफरेंस निकाल के फिर y के लिए भी वही फॉलो करेंगे. क्रॉस मल्टीप्लाई फिर डिफरेंस फिर क्रॉस मल्टीप्लाई. कांस्टेंट टर्म में 1 के लिए फिर वही करेंगे हम. क्रॉस मल्टीप्लाई, डिफरेंस, क्रॉस मल्टीप्लाई और सॉल्व करेंगे. आखिर में आपको कंपेयर कर लेना है इसको और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करना है. x by 2 equal to 1 by 1, 1 into x, 2 into 1 2. We have got x equal to 2. Here also y into 1 by 1 into 1. Value of x and y, we have got both the variables value. X equal to 2, y equal to 1, and it was the cross multiplication method. Now I will solve this equation by substitution method. Equation is same, method is different. Okay, I am going to use substitution method. Here two equations are given. 2x plus y equal to 5, 3x plus 2y equal to 8. Substitution, the word substitute means एक को दूसरे की जगह पुट करना, स्थापित करना, प्रतिस्थापित करना उसे. तो एक के वैल्यू को, एक वेरिएबल्स को दूसरे के इक्वेशन में रखेंगे तो दूसरा वेरिएबल्स और फर्स्ट वेरिएबल्स के आंसर निकल जाएंगे. जैसे मेरे पास एक इक्वेशन है 2x plus 5 plus y equal to 5. ये फ्रॉम इक्वेशन 1 से मैंने एक इक्वेशन लिया. फ्रॉम इक्वेशन 1 मैंने इक्वेशन 1 से लिया 2x plus y equal to 5. एक वेरिएबल मैंने इसको लिया और 2 को ट्रांसफर कर दिया 2x को यहाँ, और ये बन गया इक्वेशन नंबर 3. इक्वेशन 1 से लिया मैंने ये y का वैल्यू, अब मैं इक्वेशन 2 में रख दूंगा. सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2. लिख दीजिए, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2. 3x plus 2y equal to 8. y की वैल्यू को 2 में सब्स्टिट्यूट करेंगे. ठीक है, तो हमारा क्या है y का वैल्यू, ये देखो 3x है, 3x
प्लस 2y, 2 y का वैल्यू कितना है 5 माइनस 2x इक्वल टू 8। क्या किया मैं एक इक्वेशन लिया, फर्स्ट इक्वेशन को मैंने लेकर के थर्ड इक्वेशन बनाया, y का वैल्यू निकला, y की वैल्यू जब आ गया तो उसको मैंने इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट कर दिया, 3x प्लस 2y y की जगह सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब इसको मैं ओपन करूंगा और लीनियर इक्वेशन जैसे आप क्लास 7 वगैरह में पढ़े हैं कुछ ऐसे सॉल्व हो जाएगा। ये देखिए ओपन करते हैं, चलिए 3x है वो 3x 2 इंटू 5 10 प्लस 2 इंटू माइनस 2x 4x इक्वल टू 8। ठीक है, ये 3x ये माइनस 4x बोथ आर लाइक टर्म, 3x माइनस 4x माइनस x, 10 को उधर ले जाइए 8 माइनस 10 व्हाट इज हियर माइनस x, 8 माइनस 10 प्लस माइनस 2, ग्रेटर नंबर इज 10, निगेटिव साइन आएगा यहाँ पर और ये दोनों वैल्यूज कैंसिल हो गए, इसका वैल्यू 2 आ गया। आपने क्रॉस मल्टीप्लाई भी देखा कि इसका वैल्यू 2 आया था। अब इस x का वैल्यू 2 आया है उसको 1 में 2 में या 3 में कहीं भी रख दीजिए और सब्स्टिट्यूट करेंगे। इस x की वैल्यू को इक्वेशन 1 2 3 कहीं पर रख दीजिए, फिर आपका वैल्यू y आ जाएगा। कहीं पर रखते हैं, चलिए पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन, चलो मैं 3 में रख देता हूं, ठीक है, या 2 में रखते हैं। पहला इक्वेशन क्या था आपका, तीसरा इक्वेशन था y इक्वल टू 5 माइनस 2x, ये था ना इक्वेशन नंबर 3, यही पर रख दीजिए। चलिए ये y का y रहेगा 5 माइनस 2 और s का वैल्यू 2, y 2 2 जा 4 कितना है y इक्वल टू 1। आप इक्वेशन 1 में भी रख सकते हैं, तब भी y इक्वल टू 1 आएगा। 2 में कर दीजिए, 3 में कर दीजिए, कहीं भी आप सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। एक के वैल्यू निकालने के पश्चात दूसरे के वैल्यू में दूसरे इक्वेशन में इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे तो एक वेरिएबल निकलेगा और उसको फिर कहीं पर दूसरे जगह सब्स्टिट्यूट करेंगे तो एक वैल्यू निकलेगा। जैसे मैंने 2 इक्वेशन लिया, 2 इक्वेशन लेकर के एक इक्वेशन से तीसरा बनाया, उस वैल्यू को दूसरे में पुट किया और जो वैल्यू आएगा x या y का, कोई जरूरी नहीं कि x या y का वैल्यू एक ही बार में निकल जाए। अभी मैंने y को सब्स्टिट्यूट किया तो x निकला, तो ये था आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड। आपने मेरे फर्स्ट वीडियो में देखा होगा सेकंड पार्ट में एलिमिनेशन मेथड। जो पहला मेथड आपका था ग्राफिकल मेथड, आपने 9th क्लास में ग्राफिकल मेथड पढ़ लिया है। 9th क्लास में आप 2 वेरिएबल्स का एक सिंगल इक्वेशन करता था, किसी भी वैल्यूज को रखिए x का y निकल जाता है, y का वैल्यू रखेंगे तो x निकल जाएगा। कोई भी 3 वैल्यू निकाल लेना और 3 निकालने के बाद ग्राफ में खींचना, एक ग्राफ मिलेगा फिर दूसरा ग्राफ मिलेगा। When both the graph intersect at particular place, that will be the value of x and y। ग्राफ में यदि इसी को हम ग्राफिकल मेथड से करेंगे तो एक मेथड से हम सॉल्व किए थे एलिमिनेशन पार्ट 2 में, अभी मैंने आपको बताया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड। यदि आप इसको ग्राफिकल में करेंगे तो पहले इक्वेशन में कोई भी x या y का वैल्यू 3 बार निकाल लेना। You have to put the value of y, you will get x. If you will put x, you will get y. पहला इक्वेशन मिलेगा, उसका ग्राफ मिलेगा। जैसे कि ग्राफ इस प्रकार से आपको बनेगा, ये जैसे आपका ग्राफ बनेगा x एक्सिस और y एक्सिस, y एक्सिस ओरिजिन, y एक्सिस x एक्सिस। ग्राफ में आप कोई भी ग्राफ प्लॉट करेंगे, बिल्कुल 9th पे देखिए ग्राफ आप सिंगल प्लॉट कीजिए। मान लो आपका फर्स्ट ग्राफ ही ऐसा आएगा, सेकेंड ग्राफ आपको सेकंड इक्वेशन ग्राफ ही आया, तो एक इक्वेशन का ये हुआ, सेकंड इक्वेशन का ये हुआ। जहां पर दोनों पर्टिकुलर पॉइंट पर कटे, मतलब पी पॉइंट पर कटा, तो यहां का वैल्यू जो होगा ये एब्सिसा एक्स एक्सिस में जो कटेगा वो एक्स की वैल्यू होगा और यहां पर जो कटेगा वो वाई का वैल्यू होगा। ठीक है, तो एक्स और वाई का वैल्यू जैसे कि अभी आपने देखा कि एक्स का वैल्यू 2 आया था, वाई का वैल्यू 1 आया था, तो ये ग्राफ में जब उसको आप निकालेंगे तो वही आपका ग्राफिकल मेथड है।
क्लास 9th में आपने अच्छे से अध्ययन किया होगा, इसलिए इसमें कोई ज़्यादा समस्याएं नहीं आएंगी आपको। और इस प्रकार से 4 मेथड जो हैं लीनियर इक्वेशन के, मैं रिपीट कर दूँ आपका। लीनियर इक्वेशन में एलिमिनेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड और ग्राफिकल ज्योमेट्रिक लाइन में इसको सॉल्व करके हम बना सकते हैं। और इस प्रकार से आपके जो मेथड्स हैं, नेचर है, यूनिक सॉल्यूशन है, नो सॉल्यूशन है, मिनी सॉल्यूशन है, ये लीनियर इक्वेशन का पार्ट समाप्त होता है। मैंने 3 वीडियो से समझाने का प्रयास किया। अच्छे से मेहनत कीजिए, जी जान लगा दीजिए, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स बन जाएंगे। प्रश्न में जनरली इक्वेशन नहीं दिए होते, इक्वेशन को फ्रेम करना पड़ता है। फ्रेम करना सीखिए, क्वेश्चन को आप 2 बार पढ़िए, इक्वेशन फ्रेम हो जाएगा। केस 1 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फर्स्ट कंडीशन, पहले केस में जो आएगा पहला इक्वेशन, फिर इक्वेशन 2 के लिए उसका सेकंड पार्ट को पढ़िए। 2 इक्वेशन मिलेंगे चिल्ड्रन, और दोनों इक्वेशन को आप कोई मेथड से बना लीजिए। जनरली परीक्षा में मेथड्स नहीं दिए होते, लेकिन कई बार मेथड्स पूछ देते हैं, यू हैव टू सॉल्व दिस बाय दिस मेथड। पर्टिकुलर मेथड का नाम देने पर आप स्वतंत्र नहीं होंगे, और पर्टिकुलर मेथड का नाम दिया तो उसी मेथड पर आपको सॉल्व करना पड़ेगा। इसलिए मेरी शुभकामनाएं हैं, और चारों मेथड्स को अच्छे से समझ लीजिए, भविष्य में काम आएगा। विश यू ऑल द बेस्ट। हम फिर से मिलेंगे दूसरे वीडियो के साथ, तब तक के